Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. So today is Gita Jayanti. That's the day when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. So Bhagavad Gita, the meaning is Bhagavad means absolute. Gita means song. The absolute truth, or the absolute knowledge. Every knowledge that we receive in this world, they're all relative. They change all the time. Even if by newspaper, it's changing all the time. But the knowledge of the Gita never change. It remains eternally truth, eternally absolute, never change. And Gita especially speaks a lot about dharma, what dharma we have to do. We see the word dharma is everywhere. From the first word of Gita is dharma. Dharma kshetre, kurukshetre, samaveta yutsavaha. Yada yada hi dharmasya kalpa nadoso pahata svabhavaha prichamitam dharma samudate chetaha. Arjuna is asking Krishna, please tell me, what is my dharma? What is my duty? So Gita speaks mostly about our duty, what we have to do. We have our material duty as well as our spiritual duty that we should not miss. And the Gita is also enlightening. Tesam evanukam partam agyanam jam tamaha nasayami atma bhavasto. This is when we speak of light. This is a real light that enlightening our path of life. So if you want to have light, this is a real light. We should read the Bhagavad Gita. It's going to help us. And ISKCON is a movement actually that is distributing millions and millions of Bhagavad Gita daily.
So if you need a copy of the Bhagavad Gita, you can come to ISKCON. And ISKCON also we have program every Sunday, starting from 2 o'clock to 5 o'clock. Whoever wants to come to ISKCON at Hare Krishna Land Phoenix, so please, you're most welcome to come. And also we are having the festival soon at Mayberg Waterfront Festival on 13, 14, and 15 December 2024. So I'd like to invite you there also to attend the festival, and also you can have your copy of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी को विशेष अभिवादन है।
11 दिसंबर 2025 अत्यंत विशेष दिवस है, क्योंकि ये मोक्षदा एकादशी कहलाता है। वैसे सभी एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है, परंतु मोक्षदा का विशेष महत्व है। मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष देने वाली, मोक्षदायिनी। क्यों इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है? क्योंकि वह एकादशी, यह वह दिन है 11 दिसंबर का, जिस दिन लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि पर साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान के मुख से भगवत गीता आज के दिन प्रकट हुई थी। तो आज का दिन यह जो है भगवत गीता के प्राकट्य का दिवस कहा जाता है, जब गीता इस धरातल पर अवतरित हुई कलियुग के जीवों का कल्याण करने के लिए। तो इसीलिए इसी मोक्षदा एकादशी को हम गीता जयंती भी कहते हैं। अब गीता जयंती का एक विशेष महत्व भी है। जयंती शब्द अगर आप जानते होंगे, जयंती मतलब क्या होता है? जयंती मतलब जन्म दिवस। जैसे हम हनुमान जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं। तो किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है उसको जयंती कहते हैं। किसी मनुष्य का जब जन्म जिस दिन होता है उसको जयंती कहा जाता है। आज तक कभी आपने दुनिया में शायद सुना है कि किसी निर्जीव वस्तु की जयंती मनाई जाती है? आईफोन जयंती या फिर मैकबुक जयंती या कंप्यूटर जयंती। निर्जीव वस्तुओं की जयंती नहीं होती है। और साथ में दूसरी एक बहुत विशेष बात है, किसी किताब की भी जयंती नहीं मनाई जाती। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, तो कभी साइंस की जयंती मनाई जाती है क्या? या फिर मैथमेटिक्स की जयंती मनाई जाती है? तो वो बहुत गहरी बात अभी मैं जो समझा रहा हूँ आपको, किसी निर्जीव वस्तु की कभी जयंती नहीं होती है और ना ही कभी किसी किताब की जयंती मनाई जाती है। परंतु विशेष बात है, यह 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्या मना रहे हैं? हम गीता जयंती मना रहे हैं। केवल इस बात को अगर आप इसका लॉजिक अगर समझ गए तो आप समझ जाएंगे गीता क्या है। गीता जयंती शब्द से आप समझ जाएंगे, क्योंकि गीता कोई निर्जीव वस्तु नहीं है और गीता मात्र कोई किताब या पुस्तक नहीं है। भगवत गीता साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान राम जी के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, वैसे भगवान का एक ग्रंथ अवतार है। एक किताब के रूप में भगवान जब अवतार लिए है वह भगवत गीता है। तो केवल भगवत गीता को अपने घर में रखता है, भगवत गीता का पूजन करता है, साक्षात भगवान का संग उसे प्राप्त होता है। तो ये ऐसा विशेष महत्व है इस भगवत गीता का। और इतिहास में देखा जाए जितने महापुरुष हुए हैं उन सभी ने गीता के महत्व को समझा है। आदि शंकराचार्य जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुँचे जहाँ पर श्री कृष्ण गीता कहे हैं, तब उन्होंने गीता के महात्म्य की रचना की है। आदि शंकराचार्य के शब्दों में कहा जाए तो हर व्यक्ति संसार में जब रहता है तो क्या होता है, जब वो संसार में घूमने लगता है तो संसार की धूल से वो मैला हो जाता है, पसीना आता है, गंदगी होती है। तो क्या करना आवश्यक है? बोले हर रोज स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे कहा गया मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। शंकराचार्य इस बात को कहे, जैसे शरीर को स्वच्छ कैसे किया जाता है? जल स्नान से, पानी से आप स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? शरीर की जो गंदगी पूरी निकल जाती है। तो विदेशों में हमको पता नहीं है, मॉरिशस में हम नहीं जानते, आजकल कई लोग शायद डेली स्नान न करते हो, केवल परफ्यूम ही मारते हैं। परंतु अपने आप को यदि शरीर को शुद्ध रखना है तो प्रतिदिन स्नान बहुत ज़रूरी है। तो शरीर का स्नान ज़रूरी है। आप चाहे न चाहे गंदगी आपके शरीर पर चढ़ी जाती है, मैल आती है, पसीना आता है। वैसे चाहे न चाहे जैसे शरीर हमारा प्रतिदिन गंदा होता है, वैसे प्रतिदिन हमारा मन भी गंदा हो जाता है।
हमारे मन में भी मैल चढ़ जाती है, काम की, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की, मद है, मोह है, मात्सर्य है। तो जल से तो शरीर का स्नान हुआ, अंदर का स्नान कैसे हो? तब वहां पर वह शंकराचार्य कहे सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। अगर कोई गीता के अमृत से स्नान करता है, मतलब व्हेन ही गेट्स एब्जॉर्ब, जो भगवत गीता की शिक्षाओं को, भगवत गीता के शब्दों को अपने जीवन में एब्जॉर्ब करता है, उनको अच्छी तरह से आत्मसात करता है, तो परिणाम क्या होता है? उसका संसार मल, अंदर का जो मैल है, मन का जो मैल है, वह निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया में देख रहे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? हम नहीं जानते यहाँ मॉरिशस में, परंतु भारत में कहा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी अभी चल रही है, वह है तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस। और भगवत गीता देखी जाए तो अर्जुन को किस समय कही गई? भगवत गीता का पहला अध्याय क्या है? तो अंग्रेजी में, हमारे भाषा में कहा जाता है द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसी अर्जुन की स्थिति है, दुनिया में लगभग सभी की वैसी स्थिति है। तो इसीलिए गीता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से आधुनिक जगत में देखा जाए, भगवत गीता केवल कोई पूजा करने वाला ग्रंथ नहीं है, इज अ प्रैक्टिकल मैनुअल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल जिसे कहा जाता है। एक व्यवहारिक निर्देशिका है। आप नई कोई वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, कोई अगर मशीन खरीद कर लेकर आते हैं, आईफोन खरीद कर लेकर आते हैं, कोई मिक्सर खरीद कर लेकर आते हैं, यदि आप उसको उपयोग नहीं जानते तो बुद्धिमानी किस में है? बोले उसके साथ में मैनुअल मिलता है जिसको कहते हैं निर्देशिका। उस निर्देशिका को आप पढ़ लेंगे तो परिणाम क्या होगा? उस वस्तु का आप सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही इस संसार में सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन बनाई गई है। कौन सी मशीन है? उसको कहा जाता है मनुष्य शरीर। तो जिसने मशीन बनाई है वही मैनुअल देता है ना। तो संसार जिसने बनाया, जिसने मानव शरीर बनाया, उसके लिए एक मैनुअल दिया है, और वह मैनुअल है भगवत गीता। तो भगवत गीता कोई ऑप्शनल ग्रंथ नहीं है, इसेंशियल ग्रंथ। कोई यहाँ मतलब पर्यायवाची नहीं है, अनिवार्य है। जिसको मानव जीवन का सदुपयोग करना है, हमको कैसे जीना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे जीना है, कैसे मरना है, हर बात को सीखने के लिए भगवत गीता ज़रूरी है। और देखा जाए जितने भी, मैं जैसे कह रहा था शंकराचार्य की मैंने बात कही है, वैसे अगर देखें भारत में एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को आदर्श कौन मानते थे? अगर अभी मैं कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जिनको हम जानते हैं, वे स्वयं सबसे अधिक प्रेरणा प्राप्त किए महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने अकेले ने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को, जो भारत पर शासन कर रहे थे, उनको बाहर निकालने में मजबूर किया था। ऐसी कौन सी विशेषता थी महात्मा गांधी में? महात्मा गांधी हमेशा शांत रहते थे, महात्मा गांधी अहिंसा प्रेमी थे, महात्मा गांधी में सहनशीलता, सभी ऐसे गुण थे जिसने पूरे संसार को प्रभावित किया। तो महात्मा गांधी के इतने अच्छे गुण, चरित्र का मूल क्या था? तो कहा जाता है महात्मा गांधी हमेशा अपने हाथ में भगवत गीता को रखते थे। हमेशा, जैसे आजकल हमारे लोग क्या करते हैं, आईफोन को कैरी करते हैं, जीना तो क्या जीना आईफोन के बिना। तो वैसी हालत थी महात्मा गांधी की, गीता के बिना कभी रहते नहीं थे, हमेशा भगवत गीता को रखते थे। और महात्मा गांधी के अपने शब्दों में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने कहा है कि जब जब मेरे जीवन में कुछ समस्या आती है, जब जब मैं संदेह आने लगते हैं, डाउट्स आने लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या निर्णय लेना चाहिए, मुझे में समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए, अचानक मैं भगवत गीता को ऐसे खोल लेता हूँ। और महात्मा गांधी अपना अनुभव बताया कि जैसे ही मैं गीता को खोलता हूँ, मुझे जो प्रश्न का उत्तर चाहिए वही मिल जाता है। और इतना ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े कई है, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लीडर्स आजकल देखे जाते हैं। 7 प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप,
ये जो ग्रंथ लिखा गया है, जो ग्रंथ के रचयिता है उनसे पूछा गया ग्रंथ आपने कैसे लिखा, तो वे कहते हैं कि मैंने भगवत गीता से ये सब शिक्षाएं ली हैं। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप में हो, आइडियल फादर, आइडियल सन, आइडियल हस्बैंड, सभी दृष्टि से अगर आपको अपने आप को अच्छा बनाना है तो उसके लिए भगवत गीता ये बेस्ट बुक है। कई वर्ष पहले मैं भारत में एक शहर में था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था, जो एक बहुत बड़े कोई वहाँ पर एक मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है उन्हें, अरविंदम चौधरी उनका नाम था। तो वे प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उनसे पूछा कि आप इतना सक्सेसफुल टिप्स कैसे दे पाते हैं, और उस व्यक्ति ने भी ये बात कही कि मैं हर रोज भगवत गीता को पढ़ता हूँ और उसी से मैंने सभी टिप्स लिए हैं। तो कहने की बात यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ, लगभग सभी लोग इस गीता को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन का आधार क्या है? जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फाउंडेशन होती है, और अब फाउंडेशन को आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आपकी इमारत बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। थोड़ा अगर तूफान आया तो इमारत गिर भी जाएंगी, और उस इमारत को आप बहुत ऊंचा नहीं लेकर जा सकते। तो मानव जीवन का जो फाउंडेशन है वह है ये वैदिक ज्ञान, और इसलिए कहा जाता है बुक्स आर द बेसिस। ये गीता जो है ये मूल आधार है। और अगर भारत का उदाहरण आपके लिए कहा जाए, भारत पर अंग्रेजों ने कैसे राज किया, तो वहाँ पर ये एकदम क्लियर हिस्ट्री में ये दिया गया है फैक्ट्स, कि उस समय अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा था भारत में, जिसका नाम कहा था मैक्स मूलर। आज भी आप गूगल में सर्च करेंगे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने खुद इस पत्र को लिखा अपने मित्र को, अपने पत्नी को, कि मुझे जो वह ब्रिटिश सरकार है वह पैसा दे रही है। किस लिए? बोले पैसा दिया जा रहा है कि मैं जाकर भारत में रहूं और भारत में जाकर भारत की भाषा संस्कृत को सीखूं। किस लिए? क्योंकि वहां पर मैं इसको सीखूंगा, और उनके जो ग्रंथ है ये गीता है, और गीता किस में आती है? महाभारत है, ये रामायण है, इसका गलत अर्थ निकालूंगा। अब प्रश्न है कि यह अंग्रेज लोग क्यों गीता के पीछे पड़े थे? तो वहां पर कहा जाता है, वहां पर मैक्यूले, लॉर्ड मैक्यूले, उनका लगभग फरवरी 1835 का उनका प्रेजेंटेशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और वहाँ पर वे लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए बात उन्होंने कही कि मैंने भारत की स्टडी की है और भारत को कभी भी आप गुलाम नहीं बना सकते। क्यों गुलाम नहीं बना सकते? बोले इनमें इतनी ज़्यादा एकता है, इतना प्रेम है, और इनका इतना स्ट्रांग विल पावर है कि उनको हराया ही नहीं जा सकता है। और फिर वहाँ पर खुद वो लॉर्ड मैक्यूले की स्टेटमेंट है, बोले कि इसका मूल कारण है कि इनकी जो संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति को इनको पकड़ के रखा है, इसलिए ये हार नहीं सकते। तो क्या करना होगा? तो बोले मैं उपाय बताता हूँ, वी शुड इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन। इसको भी मैं अंग्रेजी में ही बता रहा हूँ। देखो इतना हमारे नस नस में अंग्रेजी घुस गया है, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी के मतलब दवा पिलाकर हमको गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षण को दिया जाए। सबसे पहले क्या करो? बोले इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास गीता, रामायण, महाभारत पे से तोड़ना चाहिए। एक बार इनकी श्रद्धा टूट गई तो बोले इनके अंदर का प्रेम खत्म हो जाएगा, इनकी एकता खत्म हो जाएगी, इनका मनोबल खत्म हो जाएगा, और तब हम इनको गुलाम बना पाएंगे। इस तरह से तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और इसीलिए वैदिक एजुकेशन पहले आता था। जो मूल हम देखते हैं, यह रामायण को पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, यह महाभारत को स्कूलों में पढ़ाया जाता था, परंतु इनको हम भूल गए। और क्या आ गया? बोले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आया, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम पढ़ने लगे। तो फिर क्या हुआ? अपने आप मनोबल कमज़ोर हो गया। तो इस गीता जयंती के समय हमको विशेष रूप से वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, ये वैदिक संस्कृति केवल भारत की संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति मानव जीवन का आधार है हम सभी के लिए। तो हम सभी को आवश्यक गीता जयंती के समय इस भगवत गीता को, विशेष रूप से इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस भगवत गीता को पहुंचाया है। आपको जानकर अचरज होगा, इस वर्ष 2024 में बहुत बड़ा संकल्प इस्कॉन के द्वारा लिया गया है। संपूर्ण दुनिया में 42 लाख भगवत गीता का वितरण होने वाला है।
इतनी बड़ी संख्या में गीता का वितरण उत्साह के साथ, और प्रतिवर्ष हो रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में गीताएं बंट रही है। लगभग कहा जाए तो 30-40 करोड़ से अधिक भगवत गीता का पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन के द्वारा वितरण हुआ है। और चाहे वो अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, या फिर मॉरिशियन भी क्यों ना हो, लोगों का जीवन बदल गया है इस भगवत गीता को जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है उसके द्वारा। तो सभी का पुनः धन्यवाद। आप अवश्य इस गीता जयंती के समय इस भगवत गीता को प्राप्त करें। आपकी जानकारी के लिए मॉरिशस में बहुत सुंदर इस्कॉन का या मंदिर है फिनिक्स में, आप अवश्य वहाँ पर आए और भगवत गीता स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है। ये पूरा 1 महीना गीता मैराथन जब चलता है तो आप इस गीता मैराथन में इस गीता को प्राप्त करें और अधिक से अधिक इसकी जागृति, इसकी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। Arjuna said, by my hearing the instructions you have kindly given me about this most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्. O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. Evam me tatyatha dattha tvamatmanam parameshvara drashtumichchami te rupam aishwaram purushottamam. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. Manyase yadi tat shakyam maya drashtumiti prabho yogeshwaram tato me tvam darshayatmanam avyayam. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. Shri Bhagavan Uvacha Pashyame Partha Rupani Shatashodha Sahasrasha Nana Vidhani Divyani Nana Varna Kritani Cha. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, O son of Pratha, see now my opulences, hundreds of thousands of very divine and multicolored forms. Paschadityan vasun rudran ashvinau marutastatha bhaungyadrishtapurvani paschashtavyani bharata. O best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini, Kumaras and all other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before.